السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں زرناب ورچوئل لرننگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم میں سے ہر ایک شخص کمپیوٹر یا موبائل کو ڈیلی استعمال کرتا ہے اور کمپیوٹر یا موبائل کا استعمال سافٹ ویئر کے بغیر ناممکن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سافٹ ویئر اور اس کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سافٹ ویئر اور اس کی مختلف ٹائپس۔ یہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور یہ ایک یوزر ہے۔ یوزر اس کمپیوٹر سے اگر کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ کچھ سافٹ ویئر کی بدولت، کچھ ایپلیکیشنز کی بدولت اپنی انسٹرکشنز کو اس کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے پاس بھیجتا ہے۔ ہارڈ ویئر اس انسٹرکشن کو پرفارم کرتے ہیں اور واپس جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ یوزر کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یوزر ان سافٹ ویئرز کی بدولت ہارڈ ویئر کی طرف انسٹرکشنز کو بھیجتا ہے اور ہارڈ ویئر اس کو پرفارم کر کے واپس یوزر کو اس کے ریزلٹ بھیجتے ہیں۔ یوزر ڈائریکٹلی کبھی بھی ہارڈ ویئر کو انٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ یوزر ڈفرینٹ ایپلیکیشنز کو اور آپریٹنگ سسٹمز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انسٹرکشنز کو، اپنے ڈیٹا کو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر تک بھیجتا ہے۔ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ واپس آپریٹنگ سسٹم ایپلیکیشنز کے ذریعے سے وہ ریزلٹ واپس یوزر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس ڈائیگرام سے ہم کمپیوٹر کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک مشین ہے جو ہمارے پرابلم کو سالو کرتی ہے، سالو آور پرابلمس۔ لیکن یہ پرابلم کیسے سالو کرتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو اٹ، جیسی ہم اس کو انسٹرکشن کا سیٹ دیتے ہیں۔ اب انسٹرکشن کا سیٹ دینے کے لیے ہمارے پاس مختلف اقسام کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا یہی ٹاپک ہے سافٹ ویئر اور اس کی جو مختلف اقسام ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا یہی ٹاپک ہے سافٹ ویئر اور اس کی اقسام۔ دیکھیے، ہم نے ابھی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے جو ہمارے پرابلم کو سالو کرتی ہے اور وہ سیٹ آف انسٹرکشنز کی صورت میں سالو کرتی ہے۔ یہی جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ مل کر پروگرامز بناتی ہیں اور پروگرامز مل کے سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں۔ سافٹ ویئر مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو پرٹیکولر ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر کی انسٹرکشنز کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ اس نے کیا پرفارم کرنا ہے۔ سافٹ ویئر کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر میں اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں۔ سسٹم سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر جو کمپیوٹر کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے آپریشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی پروسیسنگ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتے ہیں، انہیں ہم سسٹم سافٹ ویئر کا نام دیتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر ڈفرینٹ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ پرووائڈ این انوائرمنٹ اور پلیٹ فارم ٹو رن ڈفرینٹ سافٹ ویئر اینڈ ایپلیکیشنز۔ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز اور سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے بھی سسٹم سافٹ ویئر انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو، اس کے آپریشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں۔ اسی لیے جو سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے لیے بہت ہی زیادہ اسینشیل ہوتے ہیں۔ وداؤٹ سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر ورک نہیں کرتا۔ سسٹم سافٹ ویئر کو ہم تین طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پہلی ٹائپ یا پہلی کیٹیگری آپریٹنگ سسٹم کی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس لینگویج پروسیسرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یوٹیلیٹی پروگرامز ہوتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم، لینگویج پروسیسر اور یوٹیلیٹی سافٹ ویئر۔ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے جو بنیادی سافٹ ویئر ہوتا ہے اسے ہم آپریٹنگ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں دیکھا کہ یہ آپریٹنگ سسٹم ہے ہمارے پاس، یہ والا۔ یوزر ایپلیکیشنز کے تھرو یا مختلف سافٹ ویئرز کے تھرو اپنے ڈیٹا اور اپنی انسٹرکشنز اس آپریٹنگ سسٹم کو دیتا ہے اور یہ آپریٹنگ سسٹم آگے ہارڈ ویئر سے وہ ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرواتا ہے۔ تو وداؤٹ آپریٹنگ سسٹم ہمارا کمپیوٹر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو اور اس کے سافٹ ویئر کے ریسورسز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مختلف طرح کے آپریٹنگ سسٹم ہیں، جس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ونڈوز کے مختلف ورژنز ہوتے ہیں، ونڈوز ایکس پی، ونڈوز وسٹا، ونڈوز 7، ونڈوز 8، ونڈوز 10۔ یہ ہمارے پاس میک آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ہمارے پاس لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ہمارے پاس
डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पीसी डॉस या एमएस डॉस जिसको कहते हैं, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा है, उबंटू है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल होता है। मोबाइल को चलाने के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उनको कंट्रोल करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कोई काम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर खास किस्म के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर चेंज कर देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को हम सोर्स कोड का नाम देते हैं और मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को हम मशीन कोड का नाम देते हैं। कंप्यूटर क्योंकि मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स को इस्तेमाल करते हुए हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर तब्दील करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स में हमारे पास असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और माइक्रो असेंबलर है। जो कंपाइलर है वो देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं। ये सब कंपाइलर को सपोर्ट करती हैं। ये इनके प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट किए जाते हैं। बेसिक लैंग्वेज है, उसके प्रोग्राम को इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम सीखते हैं और जिनके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जबकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। इसलिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर की मैनेजमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का नाम देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की मैनेजमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके रिसोर्सेज की, उसके फंक्शंस की, उसके फाइल्स की। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें डिस्क क्लीनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जस्ट लाइक ये हमारे पास एक डिस्क क्लीनिंग का सॉफ्टवेयर सी क्लीनर है। ये हमारी डिस्क में से जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को अरेंज करके रख सकते हैं। वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर्स को हम एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। और फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फाइल के साइज को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास फाइल के साइज को रिड्यूस करने का सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 कैटेगरीज पढ़ी: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर को कमांड दे रही होती हैं कि उसने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिंगल प्रोग्राम भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक नोटपैड, जिसके अंदर हम अपने सिंपल टेक्स्ट को लिख सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। या ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस का नाम देते हैं। ये सिंगल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल में हमने माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड का नाम देखा। या ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस का नाम देते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास स्प्रेडशीट पैकेजेस होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दरअसल यूज़र को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम के सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जस्ट लाइक ये, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इन्वेंट्री कंट्रोल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पेरोल प्रोग्राम्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है। हम में से हर एक शख्स अपनी अपनी ज़रूरत के तहत इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा होता है। हम
इस पूरे को एक दफ़ा समराइज़ करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सॉफ्टवेयर को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखे हुए होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा कि ये सिंगल सॉफ्टवेयर भी होते हैं और पैकेज सॉफ्टवेयर भी होते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये हमारे पास जीमेल है और ये हमारे पास गूगल क्रोम है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। जबकि हमारे पास ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको आगे हमने फर्दर तीन तरह से कैटेगराइज किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करता है, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर में हमने पढ़ा था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर की इफेक्टिव मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। सी क्लीनिंग, ये डिस्क को क्लीन करने के लिए, टेम्परेरी फाइल्स ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फ़ाइल के साइज़ को कंप्रेस करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फोल्डर्स और फाइल्स की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर। और ये मुख्तलिफ टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस जैसी मज़ीद और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।